We can see solar system is one of the major topics of general awareness in geography subject of SSC examination. So solar system से forward आगे बढ़ते हैं. So we are going to study solar system, and this is the diagrammatic representation of solar system today. As we can see, sun is the most major and most biggest part of the celestial body of solar system, and sun से ही सारे celestial bodies, that is planets, asteroids, comets, meteors सब form हुए हैं. The sun and the celestial bodies revolving around it, यानी सन के अगेंस्ट जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज जो हैं वो सन के अगेंस्ट रिवॉल्व अराउंड हो रही है, जिसमें 8 प्लैनेट्स मेजर है, 172 सैटेलाइट्स हैं. सैटेलाइट्स नेचुरल सैटेलाइट्स, नॉट द आर्टिफिशियल वंस. नेचुरल सैटेलाइट्स जो भी की प्लैनेट की सैटेलाइट्स है, फॉर एग्जांपल अर्थ की मून है, वैसे ही कॉमेट्स, मीटियोर्स एंड एस्ट्रॉइड्स, ये टुगेदर जो कॉन्स्टिट्यूट होते हैं इन्हें हम कहते हैं सोलर सिस्टम. सो सोलर सिस्टम में हम जो मेजर पॉइंट्स हैं, कुछ मेजर सेलेस्टियल बॉडीज की वो देखते हैं. Sun is the heart of the solar system. As we can see, sun is the heart of the solar system. इससे ही पूरा solar system work करता है, वही energy provide करता है. So it holds the planets of the solar system in its orbit. It holds the planet in its orbit as it provides a gravitational force to the planets. इसके around axis पे सारे planets जो हैं वो orbit करते हैं. Second है सबसे major और सबसे first जो planet है, that is Mercury. Mercury is the smallest planet and in the solar system, and it is the closest to the sun. After that we can see Venus. Venus is the second and hottest planet of the solar system. ये सबसे hottest temperature में रहता है क्योंकि इसमें CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है. CO2 concentration is high present in its atmosphere. It is also known as evening or morning star. As the temperature is high in its atmosphere, it also shines a bit, and we can see it from the earth. और हम जब earth से इसे evening और morning में देखते हैं, then it is called evening or morning star. After that comes our earth. Earth is the third planet in the solar system, and it is the only planet which supports life. इस solar system में सब एक ही planet है जो life support करता है. After that we can see Mars. Mars is the second planet, and the second smallest planet, I'm sorry, and the fourth planet in our solar system. After Mercury, Venus, Earth, we can see Mars. Mars is the fourth planet of the solar system. Mars is also known as red planet. इसे रेड प्लैनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा इसकी लैंड पे बहुत ज्यादा पाई जाती है. That's why it is called red planet. After that we come to Jupiter. Jupiter is also popularly known as giant planet because it is the most bigger largest planet in our solar system. It is fifth in number, and after that comes Saturn. Saturn is famous for its rings. इसमें rings पाई जाती है, and after that it is also the second largest after Jupiter in size. After that we come to Uranus. Uranus is the seventh and the third largest planet of the solar system. सेवेंथ में आता है ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर में, और थर्ड में आता है ये साइज में. आफ्टर जुपिटर, आफ्टर सैटर्न, यूरेनस आता है साइज में. और इट इज ऑल्सो कॉल्ड आइस जाइंट. आइस जाइंट इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर में कूल रहता है. बहुत ज्यादा लोएस्ट टेम्परेचर इसमें सोलर सिस्टम में पाया जाता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड आइस जाइंट. नेपट्यून इज द लास्ट प्लेनेट एंड द फार्देस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन. ये सबसे ज्यादा दूरी पे पाया जाता है नेपट्यून, एंड इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. फर्स्ट कम जुपिटर. जुपिटर सबसे बड़ा है. देन कम सैटर्न सेकंड. देन कम यूरेनस इज थर्ड लार्जेस्ट, एंड नेपट्यून इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. इन ऑन टोटल 8 प्लैनेट्स हैं हमारी सोलर सिस्टम में. मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, एंड सन इज द हार्ट ऑफ द प्लैनेट. we're gonna move forward now. The sun. We're gonna start with studying the sun. The sun is the originator of the solar system. The sun is known as the originator of the solar system because there was a reason. As we can see, life of star, एक स्टार की भी लाइफ होती है. उसके दौरान रेड जाइंट इज अ मूवमेंट ऑफ रेड जाइंट इज अ लाइफ पीरियड ऑफ अ स्टार. इस टाइम पे क्या होता है, जो रेड जाइंट है डेट इट ब्लास्ट ऑफ, एंड ब्लास्ट होने के बाद उसमें से डस्ट पार्टिकल्स और एनर्जी पार्टिकल्स निकलते हैं. And here dust particles, they constitute into planetesimals. This planetesimals then constitute into planets. ये सन है, ये फूटा, रेड जाइंट बना, देन इसमें dust particles बहुत सारे आ गए, then they revolve around and they form planets, which eventually is also a star. Sun is also a star. It is a source of light and energy.
सोर्स ऑफ लाइट और एनर्जी कैसे है ये? द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सन इज द न्यूक्लियर फ्यूजन, नॉट फिजन, इट इज फ्यूजन, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इट इज फ्यूजन इन विच हाइड्रोजन चेंजेस इनटू हीलियम। हाइड्रोजन एटम्स जो है वो हीलियम में चेंज होते हैं। द पार्ट ऑफ द सन विच कैन बी सीन इज नोन एज फोटोस्फीयर। सॉरी, वी कैन सी हियर, जो हमें पार्ट, जो बाहर का एरिया हमें सन से दिखता है एज दो वी कैन नॉट सी कॉज ऑफ इट्स लाइट, बट जो भी पार्ट हमें बाहर से दिखाई देता है उसे कहते हैं हम फोटोस्फीयर सन का। द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सन विच इज विजिबल ओनली एट द टाइम ऑफ सोलर एक्लिप्स, एज वी हैव सीन सोलर एक्लिप्स हमने कई बार देखा है, ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण, उस टाइम पे जब पूरे साइड, पूरे मिडिल में ब्लैकआउट हो जाता है तब बाहर से हल्की हल्की लाइट दिखती है, एंड दिस लाइट इज कॉल्ड कोरोना। दिस जो भी लाइट ये है, ये टैग किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड कोरोना। अ स्टॉर्म ऑफ हॉट एटम्स which dissipates from the photosphere, इस फोटोस्फीयर से हॉट एटम्स का स्टॉर्म निकलता है कभी कभी, वो डिसिपेट्स होता है, यानी अर्थ जो सन ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके बाहर वो चले जाता है, इट मूव्स आउट ऑफ इट एंड ट्रेवल्स इनटू आउटर स्पेस। जब ये ट्रेवल करता है आउटर स्पेस से, तब ये अर्थ को किसी पॉइंट पे टच करता है, जो सोलर फ्लेयर से किसी पॉइंट पे अर्थ को टच करते हैं, एंड दिस सोलर फ्लेयर्स when touch the earth they are called solar flares, and this solar flare is the earth atmosphere after colliding with the air। जब ये एयर से कोलाइड होते हैं, वी कैन सी सोलर फ्लेयर्स जो है, हम इक्वेटोरियल पार्ट में नहीं देख पाते हैं सोलर फ्लेयर्स बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर, टचिंग परपेंडिकुलर। सोलर फ्लेयर्स परपेंडिकुलर टच होते हैं, वो डायरेक्ट अंदर घुस जाते हैं अपने एटमॉस्फेयर के, बट सोलर फ्लेयर्स को हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल में देख पाते हैं जब वो डस्ट पार्टिकल्स और एयर से कोलाइड होते हैं। जब वो डस्ट पार्टिकल्स और एयर से कोलाइड होते हैं, दे गेट फ्रिक्शन डब, और जब ये फ्रिक्शन डब होते हैं तो एक स्पेक्टेकुलर कलरफुल इफेक्ट होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। नॉर्थ पोल पे इस इफेक्ट को कहते हैं हम ऑरोरा बोरियलिस, और साउथ पोल में इसे हम कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ऑरोरा बोरियलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस आपने देखा होगा, इमेजेस में देखा है, वीडियोस में देखा होगा। ब्लू कलर की लाइट्स जो होती हैं हमने देखा होगा, नॉर्दर्न लाइट्स जिसे कहते हैं, नॉर्दर्न लाइट्स, साउदर्न लाइट्स, ये नॉर्थ और साउथ पोल में पाई जाती है, रात के टाइम पे दिखती है आसमान में, इसे कहते हैं ऑरोरा बोरियलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, इसका टेक्निकल टर्म है। और ये कॉज होता है सोलर फ्लेयर्स के कारण, जो डिसिपेट हो जाते हैं, जो बाहर निकल जाते हैं, बर्स्ट ऑफ हो जाते हैं हॉट एटम्स, जो भी सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। We wanna move forward. Any questions? No. Important facts about sun. सन के important facts जो हैं वो कुछ हम जान लेंगे that are necessary examinations. First, minimum distance of the earth from the earth. I'm sorry. Minimum distance from the earth. As we can see, as we have already been read that ecliptical axis होता है हर planet का sun के around, that is not in a circular motion but in a oval motion। then oval motion का एक्सिस है, then at some point जो है वो planet है जो सबसे ज्यादा नियर होता है सन के, और at some point it is the farthest। तो मिनिमम डिस्टेंस जो है सन का अर्थ से, उसे हम कहते हैं पेरिलियन, उसका टेक्निकल टर्म है पेरिलियन। द टेक्निकल टर्म इज कॉल्ड पेरिलियन एंड इट इज 147 किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर, आई एम सॉरी, मिलियन किलोमीटर। सो मिनिमम डिस्टेंस जो है अर्थ का is called perihelion and it is 147 million किलोमीटर, एंड ये प्रिसाइसली जनवरी 3rd में ये देखा जा सकता है कि अर्थ जो है वो सन के सबसे ज्यादा पास, दिस इज सन एंड दिस इज द इलेक्ट्रिकल पार्ट। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा पास में यहाँ पे अर्थ दिख सकती है, सो ये सबसे ज्यादा पास में है, और इसी डे को हम कहते हैं पेरिहिलियन। ये हमें देखा जा सकता है जनवरी 3rd को पेरिहिलियन का मोशन होता है एंड इट इज कॉल्ड 147 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस पे ये रहता है। मैक्सिमम डिस्टेंस वी कैन सी, मैक्सिमम यहाँ पे होता होगा ऑब्वियसली, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, इट्स टेक्निकल टर्म इज एपीहिलियन। सो आपसे कभी भी डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि मिनिमम डिस्टेंस क्या है और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, दे आर गोना आस्क यू दैट पेरिहिलियन, व्हाट इज पेरिहिलियन, व्हाट इज एपीहिलियन। Perihelion is minimum distance, whereas aphelion its maximum distance. Minimum distance is 147 million kilometers, and maximum distance from the Earth, aphelion, is 152.1 million kilometers. And this can be seen precisely on July 4. That is July 4 को जो Earth है वो सूरज से maximum distance में होती है, और minimum distance में पेरिलियन के टाइम पे अर्थ जनवरी 3rd को होती है, that is 147 million kilometers।
एवरेज डिस्टेंस आप इसका और इसका एवरेज डिस्टेंस निकालेंगे, देन एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ जो है सन का, डेट इज 149.8 मिलियन किलोमीटर प्रिसाइज। उसके बाद टेम्परेचर ऑफ द फोटोस्फियर, द हम ये देख सकते हैं जो बाहर का ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, डेट इज फोटोस्फियर। इसका टेम्परेचर जो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद टेम्परेचर ऑफ द सेंटर, जहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस होता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर में रहता है, डेट इज 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। बहुत ज्यादा है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। द कंपोजिशन, now we can see the composition of the sun. Sun is mainly composed of hydrogen converting to helium and other elements because of nuclear fusion. So as of now condition, hydrogen is 71%, whereas helium is increasing, but at slow rate. Helium is at 26.5%, and other elements we can see is 2.5%. Precisely we cannot say, but the age of our sun, our star, is 5 billion years approximately, not precisely but approximately, that our our sun is 5 billion years old. Time taken by the light to reach the earth, the energy and the light reaches our earth takes some time, as we have known, light years, kilometers. So as of human form, we can see that light, we cannot see light travels, but at universe point of view, we can see that light takes time to travel. So the जो लाइट जितना टाइम लेती है ट्रेवल होने में फ्रॉम अर्थ रीजन, सन रीजन टू अर्थ रीजन, मतलब अर्थ तक पहुंचने के लिए एक लाइट जो है सन की वो ट्रेवल करती है 8 मिनट 18 सेकेंड्स, एंड टाइम टेकन बाय द लाइट टू रीच द अर्थ इज 8 मिनट 18 सेकेंड्स प्रिसाइसली। Next, we gonna move forward to the planets. Planets एक commonly पूरा पढ़ लें अगर planets का, तो they are the celestial bodies originating from the sun, as I told you. sun से originate होती हैं celestial bodies. Celestial bodies included planets, asteroids, and they revolve around it because of its gravitational force. Obviously, they do not have their own light. उनकी खुद की लाइट नहीं होती है, and they receive light and heat from the sun. हीट, लाइट एंड एनर्जी जो है वो सन से ही रिसीव की जाती है। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जितने भी प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स में से जितने प्लैनेट्स अभी, फर्स्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इंक्लूडिंग अर्थ। अर्थ भी वेस्ट टू ईस्ट ही होती, बट दो प्लैनेट है, दैट इज वीनस एंड यूरेनस। वीनस एंड यूरेनस रिवॉल्व फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। यानी अदर जो 6 प्लैनेट्स हैं, दैट इज मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, not Venus, Mercury, Mars, Jupiter, Earth, Saturn, Neptune, जो ये 6 planets हैं, ये वेस्ट टू ईस्ट ट्रेवल होते हैं, बट जो वीनस और यूरेनस है ये ईस्ट टू वेस्ट रिवॉल्व होते हैं। तो ये जो डिफरेंस है ये बहुत पूछा जाता है एसएससी के एग्जामिनेशंस में। द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज जुपिटर। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है, whereas Mercury is the smallest. One of the 8 planets, Mercury, Venus, Earth and Mars, are called terrestrial planets. आउट ऑफ द 8 planets इन ऑन टोटल है, उसमें से जो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, शुरू के जो 4 प्लैनेट्स हैं, दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है, एज द स्ट्रक्चर बीइंग सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ। इनका स्ट्रक्चर जो है वो अर्थ से सिमिलर होता है, ये चारों का, मर्क्यूरी, वीनस एंड मार्स, इसका स्ट्रक्चर जो है वो अर्थ से सिमिलर है, इसलिए इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहा जाता है। और इसका एक और रीजन है कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो है वो सॉलिड होते हैं स्ट्रक्चर में, दे आर सॉलिड इन स्ट्रक्चर, एंड whereas planets beyond the orbit of Mars, मार्स के ऑर्बिट के जो बाहर के हैं, am I live now? Am I live?
I guess I'm sharing right now. There will be, yeah, you are on the planets. टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर सॉलिड इन स्ट्रक्चर, उनकी जो लैंड होती है वो सॉलिड स्ट्रक्चर की होती है. दे आर नॉट इन गैशियस फॉर्म, whereas Jovian planets are in gaseous. Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, they are in gaseous form, where and they are also called Jovian planets. Gaseous and Jovian. You have to remember that Jovian and gaseous, terrestrial and solid. Terrestrial planets are solid in structure. So we're gonna move forward. First planet we're gonna study about Mercury. Mercury with a diameter of 4879 kilometers. इसका diameter होता है 4879 kilometers. Mercury being the smallest planet of our solar system is closest to the sun. It is closest to the sun. Mercury is closest to the sun and the smallest planet of our solar system. It takes 88 days to complete one revolution of the sun. It completes one revolution of the sun in 88 days because of being the inner zone of our solar system. तो सोलर सिस्टम के इनर साइड है, सबसे पास है सन के, इसलिए उसे सिर्फ 88 डेज लगते हैं एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए. बिटवीन द अर्थ एंड द सन, मर्क्यूरी एंड वीनस आर कॉल्ड इंटीरियर प्लैनेट्स. ये इनर जोन में है सोलर सिस्टम के. इट इज आल्सो कॉल्ड इंटीरियर प्लैनेट्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन. अर्थ और सन के बीच के जो प्लैनेट्स है दे आर कॉल्ड इंटीरियर प्लैनेट्स. इंटीरियर प्लैनेट्स ऑब्वियसली मर्क्यूरी एंड वीनस होंगे बिकॉज दे आर ऑन इनर साइड ऑफ द अर्थ एंड सन. Life is not possible on this planet because of the absence of atmosphere. Atmosphere is not present in this planet. The days are extremely hot and the night are extremely cold here. बहुत extreme temperatures और pressure होता है यहाँ पे because ये sun के बहुत ज़्यादा पास में है, so extremely hot obviously होगा. दूसरे साइड में on the other side extremely cold भी होता है. The range of temperature, that is the difference between the minimum and the maximum temperature. जो भी मिनिमम टेम्परेचर है और जो भी मैक्सिमम टेम्परेचर है इस प्लेनेट का, डेट एक्सीड्स अबाउट 560 डिग्री सेल्सियस. मतलब मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस है डेट इज 560 डिग्री सेल्सियस. मतलब बहुत ही अनस्टेबल है. द ड्यूरेशन ऑफ वन डे ऑन मर्क्यूरी इज इक्वलेंट टू 90 डे ऑन डेट ऑफ अर्थ. मतलब इसका जो रोटेशन है वो बहुत स्लो होता है. ड्यूरेशन ऑफ वन डे ऑन मर्क्यूरी इज इक्वल टू 90 डे ऑन डेट ऑफ अर्थ. Its mass is 1/18th of the mass of the earth. इसका जो mass है वो 1/18th है, मतलब mass earth से बहुत कम है. It has no natural satellite. इसका कोई natural satellite नहीं है. Mariner 10 was the only artificial satellite that surveyed the surface of the Mercury very closely, revealing the mountain craters and plains on its surface. Mariner 10 यहाँ से artificial satellite भेजी गई थी जिसने माउंटेन क्रेटर्स एंड प्लेन्स को सरफेस किया था, और ये फर्स्ट सैटेलाइट थी जो यहाँ भेजी गई थी. फर्स्ट एंड ओनली सैटेलाइट. आफ्टर दैट वी गोना स्टडी अबाउट वीनस. इट इज द सेकंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन आफ्टर मर्क्यूरी. सेकंड क्लोजेस्ट प्लैनेट है ये सन के, रिवॉल्विंग अराउंड इट इन 225 डेज. ये 225 डेज में रिवॉल्व करता है. This planet, along with Uranus, moves around the sun from east to west and is the nearest planet to the Earth. ये जो प्लेनेट है ये यूरेनस के जैसे ईस्ट टू वेस्ट ट्रेवल करता है. ऑलरेडी टोल्ड यू ईस्ट टू वेस्ट ट्रेवल करता है एंड इट इज नियरेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ. अर्थ से सबके पास में ट्रेवल जो प्लेनेट है वो है वीनस. और ये 225 डेज रिवॉल्व कर लेता है रिवॉल्व करने के. मर्क्यूरी हमने देखा था 88 डेज लेता है, whereas Venus takes 225 days. It is the brightest object in the sky after the sun and the moon.
मून और सन के बाद ये ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसे इवनिंग और मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, सिंस इट कैन बी सीन इन द ईस्ट ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इन द वेस्ट इन द इवनिंग. इट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्निंग एज वेल एज इवनिंग स्टार. ये ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि इसमें टेम्परेचर इसके एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा होता है, और इसका रीजन है CO2 का परसेंटेज, जो अभी हम पढ़ेंगे आगे. Being almost similar to the Earth in size and mass, it is also almost similar to Earth in size and mass. It is also called, that's why it is also called sister planet or twin planet of the Earth. Earth का twin planet और sister planet, इससे related कोई सा भी क्वेश्चन आता है, you have to answer that. कि इसका आंसर है वीनस, क्योंकि ये सिमिलर है अर्थ के साइज में और मास में. इट्स एटमॉस्फेयर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ CO2, दैट इज 90 to 95% जो है इसमें CO2 होता है. दैट्स व्हाई इट इज वेरी हॉट इन नेचर, which produces a pressure cooker condition on its planet. pressure cooker condition होती है, इसलिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर में हॉट होता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो प्रेसिपिटेट करता है. It is the hottest planet of the solar system, as I've told you. Like Mercury, Venus also has no natural satellite. जो first two planet है उसकी कोई भी natural satellite नहीं है. After that, we gonna study about Earth. Earth we have known. Earth is the third planet from the sun. Third planet है Mercury, Venus के बाद third planet जो है वो sun है, Earth है. And fifth largest planet of the solar system. First है Jupiter, second है Saturn, third Uranus, fourth Neptune, and fifth largest is Earth. It lies between the orbit of Mars and Venus. Mars और Venus के बीच में इसका orbit lie करता है. It rotates on its axis from west to east, यानी इसका जो rotation है from वो भी west to east होता है, इसका जो revolution है वो भी west to east ही होता है. It is tilted on its axis by 23.5 degree. 23.5 degree tilt है अपने axis पे. It takes about 365 and 1/4 days to complete one revolution around the sun. That is approximately 5 hours. 365 days and 5 hours something minutes and seconds around the sun. Its average distance from the sun is about 150 million kilometers. Average distance जो है I have already told you 149.1 something है. 150 million kilometers भी कह सकते हैं. It takes about 365 and 1/4 days. इसी का रीजन है कि जब 3 साल हो जाते हैं तो 1/4 days add upon to 3/4, और जब ये 4/4 फोर्थ ईयर में होता है तो हम एक डे बढ़ा देते हैं, that is 366. So ये जो 1/4 जो है ये एक्स्ट्रा टाइम, इसी के कारण हम चौथे साल को लीप ईयर की तरह मानते हैं और एक डे बढ़ा देते हैं. That's the reason of it. Optimum temperature on its surface and availability of ample amount of oxygen and water makes the Earth the only planet of the solar system where life exists. We have already known that optimum temperature we have seen here. On its surface, availability of ample amount of oxygen की availability है जिसमें reside हम कर रहे हैं, water है. इसी का कारण है कि सोलर सिस्टम में एक ही planet है जहाँ पे life exist करती है, because of optimum temperature, availability of water and oxygen. These three are major components that supports life. It looks blue when seen from outer space due to the presence of large amount of water. We have already seen बहुत ज़्यादा पानी रहता है इसमें, अर्थ में, hence it is also called blue planet. After that, we gonna study some important facts about Earth. So अगर आपसे कोई कहे what is the shape of the Earth, you're not gonna say oval, you're not gonna say sphere, you're gonna say geoid. इसका एक special name होता है space इसका shape का, that is geoid. Earth की shape जो है वो geoid है, ना oval है ना it is spherical. So जो भी पहले पढ़ा था स्कूल में, that's wrong. Polar diameter इसका क्या होता है, poles में actually Earth is geoid in shape, so it is like this, not circle. It is pressed on the poles and it is outer on the equator. So this is equator and this is poles. So poles में इनका diameter जो है वो थोड़ा कम होता है. It is 12,714 kilometers, whereas equatorial diameter जो है that is 12,756 kilometers. Polar perimeter क्या होता है? Polar perimeter is the perimeter we gonna if we gonna travel from north pole to south pole, then from south pole to north pole, then वो कितना cover करेगा, that is 40,008 kilometers. whereas equatorial perimeter जो है, equator से हम पूरा equator को 0 डिग्री latitude पे पूरा अगर हम travel कर लेते हैं, then equatorial perimeter जो है वो of course थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि geoid shape है, 40,075 kilometers. You wanna you have to memorize this. इसका कोई solution नहीं है.
वाटर जो है वो 71% है, लैंड जो है 21% है, वाटर ज्यादा है। एज इसकी एस्टिमेटेड है, नॉट प्रिसाइज है, प्रिसाइज नहीं है, इट इज नॉट प्रिसाइज्ड, but estimated age of our Earth is 4.6 billion years. Surface area of our Earth is 511 million square kilometers. Rotation time it takes 23 hours, 56 minutes and 4 seconds precisely. And the distance from the sun, average distance from the sun is 38,000, uh, 38, 3,84,000, sorry, 3,84,000 kilometers. The deepest point on our deepest point on our Earth is Mariana Trench in Pacific Ocean. Pacific Ocean में Mariana Trench है, that is deepest point on our Earth. और इतना deep है, it is 11,033 meter deep from the mean sea level. जो sea level है उससे 11,033 meter deep है Mariana Trench, जो कि Pacific Ocean में। वो हमें अर्थ से अगर आप अर्थ का ग्लोब देखेंगे आप तो, या अर्थ की आप फोटो वोटो कुछ भी देखेंगे तो आपको एक डार्क स्पॉट दिखता है पैसिफिक ओशन में, डेट इज कॉल्ड मरियाना ट्रेंच। हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? ऑब्वियसली वी नो हाईएस्ट पॉइंट फ्रॉम सी लेवल इज माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो डेट इज इंक्रीजिंग एट अ स्लो कंडीशन बट इट इज इंक्रीजिंग। सो एज ऑफ नाउ वी कैन टेल 8,848, but you can also say 49 or 50. So you're gonna study it with current thing, but as of current I can say 8,848 किलोमीटर की है माउंट एवरेस्ट की। ये कुछ important facts हैं अर्थ के। आफ्टर दिस वी गोना स्टडी मार्स। ये मार्स जो है डेट इज आवर लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, कॉज इसके बाद हम जोवियन प्लैनेट्स नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। मार्स के बाद हम जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस उससे आए थे वो देखेंगे। सो मार्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेड प्लैनेट। मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट रेड अपीयरेंस। रेड अपीयरेंस इसका क्यों होता है, इसका एक रीजन है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा। आयरन ऑक्साइड इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन इट्स एटमॉस्फेयर, आई एम सॉरी, इन इट्स लैंड, ऑन इट्स लैंड, नॉट इन इट्स एटमॉस्फेयर, ऑन इट्स लैंड। and because of this iron oxide it is colored red, so it is also called red planet. The atmosphere on this planet is very thin, बहुत thin atmosphere है इसका। It takes about 687 days to complete one revolution around the sun. हमने पढ़ा था मर्क्यूरी का 88, आई गेस वीनस का हमने 225 या 225 डेज पढ़ा था। अर्थ का हमें पता है 365 and 1/4 days। and after that we gonna study about Mars. Mars का just double है अर्थ के, that is 687 days लगते हैं एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। इट्स रोटेशन इज लाइक दैट ऑफ अर्थ। इसका जो रोटेशन है वो अप्रॉक्स 24 आवर्स ही लेता है सन के जितना, अर्थ के जितना। इसकी दो नेचुरल सैटेलाइट्स है। हमें अपनी सैटेलाइट का पता है, मून है। मून के बारे में हम स्पेशली अलग से पढ़ेंगे क्योंकि वो हमारी खुद की पर्सनल सैटेलाइट है। सो उसके लिए हम जो भी प्लैनेट्स कंप्लीट करके मून का उठाएंगे, क्योंकि मून और एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स ही हम अलग से उसके बाद पढ़ेंगे। बट अभी जो है इसके मार्स के जो मेन जो दो नेचुरल सैटेलाइट्स है, दे आर फोबोस एंड डीमोस। जिसमें जैसे मून हमारा एकमात्र सैटेलाइट है, इट इज वन एंड ओनली सैटेलाइट ऑफ आवर अर्थ, बट I'm sorry, Earth has moon, and moon is the one and only satellite of the Earth. But Mars includes two satellites. They are Deimos and Phobos. That जिसमें भी Deimos is the smallest satellite of the solar system. Deimos जो कि है वो smallest satellite है solar system की। The highest point on this planet is Nix Olympia. Nix Olympia जो है वो highest point है, जैसे हमारे माउंट एवरेस्ट है 8,848 meters का। यहाँ पे highest point है Nix Olympia, which is 3 times as high as Mount Everest। मतलब 8,848 into 3 करेंगे तब वो माउंट एवरेस्ट, तब वो निक्स ओलंपिया की हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा। तो हाईएस्ट पॉइंट बहुत ज्यादा बड़ा है इसका। सेवरल मिशन हैज बीन सेंट फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ द मार्स। मार्स एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत सारे मिशन हमें एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत सारे मिशन सेंट हुए हैं, बिकॉज इट इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज बीइंग एक्सपेक्टेड। हम यहाँ मार्स में लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत टाइम से, इसलिए बहुत सारे मिशंस हुए हैं यहाँ पे इसके एक्सप्लोरेशन के लिए। फर्स्टली द आर्टिफिशियल सैटेलाइट मार्स ओडिसी। सबसे फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट मार्स ओडिसी गिव आउट द इंफॉर्मेशन अबाउट आइस कैप्स एंड फ्रोजन वाटर। आइस कैप्स और फ्रोजन वाटर जो है मार्स में पाया जाता है, और इसकी इंफॉर्मेशन दी थी मार्स ओडिसी। मार्स ओडिसी was the first artificial satellite. NASA launched its Mars Science Laboratory on Mars Curiosity। मार्स साइंस लेबोरेटरी जो है नासा ने लॉन्च करी थी।
Rover was the Mars Curiosity rover for the study of Mars environment possible life. Okay. NASA launched Mars Science Laboratory on Mars Curiosity rover. Mars Curiosity rover, it's a rover that is being that is moving around Mars today. और इसके मार्स का एनवायरनमेंट और पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ देखने के लिए नासा ने इसे लॉन्च किया था. इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट इट कुड कम इन योर एग्जामिनेशन. इट वाज लॉन्च्ड इन नवंबर 2011. 2011 में ये रोवर को लॉन्च किया गया था. फाइनली इट लैंडेड ऑन इट्स सरफेस एट अ प्लेस कॉल्ड गेल क्रेटर. गेल क्रेटर में इसे लॉन्च करके ये इसने लैंड किया था इस मार्स की सरफेस पे अगस्त 2012 में. ये जो रोवर है ये अभी भी नासा ने लॉन्च करके अभी भी इट इज प्रेजेंट इन मार्स. Presently, it is sending electronic messages, images, and other information to DeepSat Space Network of NASA. ये अभी भी information भेजता है और इसका नाम है Mars Curiosity rover. You have to learn it. Mars Curiosity rover sent by Mars Science Laboratory by NASA, and it is sent on November 2011, and it ended and landed on its surface, landed on Mars surface at a place called Gale Crater in August 2012. Okay. नेक्स्ट मार्स ऑर्बिटर मिशन. ये मूवी भी आई थी MOM मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान. दिस इज इंडियाज mission for Mars to discover Mars a bit more. The Mars Orbiter Mission MOM, also called Mangalyaan, is the first space probe of India as scientific invention of the Mars. Mars का scientific invention जो हुआ था उसका डिस्कवरी के लिए सबसे पहला जो है वर्क जो हुआ था दैट इज कॉल्ड मार्स ऑर्बिटर मिशन. यही हुआ था. इट वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ऑन 5th of November 2013 ये लॉन्च किया गया था. यू हैव टू रिमेंबर दिस डेट. 5th of November 2013 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था. द मार्स ऑर्बिटर मिशन lifted off from the first launch pad at Satish Dhawan Space Center. Satish Dhawan Space Center जो है SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है. इसका भी क्वेश्चन आ सकता है. सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश. यहाँ से जो है लॉन्च हुआ था मार्स ऑर्बिटर मिशन यूजिंग अ PSLV vehicle. PSLV in the sense Polar Satellite Launch Vehicle. PSLV C-25 प्रिसाइसली इसका नाम था, जिससे कि मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM सैटेलाइट का लॉन्च हुआ था. ये हुआ था सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से. बे ऑफ बंगाल में ये प्रेजेंट है और इसका फर्स्ट लॉन्च पैड वहीं पे था. 2013 5 नवंबर 2013 को प्रिसाइसली लॉन्च किया गया था इसे. इंडिया has entered the Martian Elite Club along with USA, रशिया एंड यूरोपियन यूनियन. हमने फर्स्ट ट्राई किया था और हम फर्स्ट ट्राई में ही सक्सेसफुल हुए थे और इंडिया ने मार्शियन इलाइट क्लब में एंटर किया था. अभी तक सिर्फ तीन ही जो है यूनियन और कंट्री वी कैन से जिसने मार्स पे सक्सेसफुल मिशन कंप्लीट करे थे. US, रशिया, यूरोपियन यूनियन. आफ्टर दैट इंडिया जो है उसने फर्स्ट ट्राई में ही मार्शियन इलाइट क्लब में वो अपना नाम लिखवाया था कॉज ऑफ सक्सेसफुल मिशन ऑफ मंगलयान. Mangalyaan was also known as the Super Mart spacecraft by Time magazine. Time magazine ने इसे Super Mart spacecraft भी नाम दिया था and listed it in best 25 invention of 2014. 2014 में बेस्ट इन्वेंशन का भी इसे लिस्ट किया था. 25 बेस्ट इन्वेंशन में इसका नाम था 2014 में. रिसेंटली ऑन 19 जून 2017 मार्स ऑर्बिटर मिशन हैज कंप्लीटेड 1000 डेज इन ऑर्बिट. 19 जून 2017 पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसने 1000 डेज कंप्लीट कर लिए हैं. बट 2021 का डेटा आई टेल यू मोर अबाउट इट. बट मेरे पास अभी रिसेंट डेटा जो है वो 2017 का ही है. आफ्टर दैट वी गोना स्टडी मोर अबाउट मार्स एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू मार्स. मार्स का फैक्ट्स इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे हम वर्क करते हैं इस प्लेनेट में लाइफ ढूंढने की और एक्सप्लोर करने की. सो इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो वी हैव टू नो दैट. इसका डिस्टेंस जो है सन से दैट इज 22.79 किलोमीटर्स है, करोड़ किलोमीटर्स. आई एम सॉरी. डायमीटर इसका है 12,714 किलोमीटर्स. एक रिवॉल्यूशन ये सन का लेता है 686.98 डेज, 687 डेज वी कैन से. रोटेशन इसका लगभग एज आई सेड अर्थ के जितना ही होता है 24 आवर्स 37 मिनट 23 सेकेंड्स. डेंसिटी 3.93 ग्राम पर सेंटीमीटर है. ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका
1.38 ऑफ द अर्थ। मतलब अगर अर्थ का अगर अपन एक यूनिट लेते हैं, 1 यूनिट अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इसका उसका 1.38 ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। सरफेस टेम्परेचर जो है इसका -87 टू -5 डिग्री जाता है। मतलब इसका टेम्परेचर जो है वो बहुत लो रहता है, प्लस में तो आता ही नहीं है। -87 डिग्री टू -5 डिग्री सेल्सियस में। सैटेलाइट्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, फोबोस एंड डीमोस। एटमॉस्फेयर CO2 आएगा, आई एम सॉरी CO लिखा हुआ है वहाँ पे, CO2, नाइट्रोजन एंड आर्गन। एटमॉस्फेयर में इसका बहुत थिन एटमॉस्फेयर होता है, जिसमें कि ओनली 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, दैट इज CO2, नाइट्रोजन एंड आर्गन। एक्सिस इसका टिल्ट है, हमारे अर्थ का जो टिल्ट है वो है 23.5 डिग्री, इसका 25 डिग्री। ये बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस करता है अपने अर्थ से, रोटेशन में भी, और आई मीन रोटेशन में भी, और लगभग डायमीटर में भी, और डेंसिटी में भी। सो इसका जो रिजेम्बलेंस है, इसी के कारण इसे हम सोचते हैं, वी एक्सप्लोरेड दैट देयर कैन बी लाइफ। और यहाँ पे वाटर और आइस कैप्स तो पाई गई हैं, एज आई टोल्ड यू। यहाँ पे ह्यूमन मिशंस कौन से हैं? मेरिनर 4, मार्स पाथफाइंडर, मार्स ओडिसी। आप टोल्ड यू मार्स ओडिसी जो हुआ था सबसे पहले। मेवन मार्स क्यूरियोसिटी रोवर जो नासा ने किया था। मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नवंबर 2011 में, 2012 में वो वहाँ पे लैंड हुआ था गेल क्रेटर में, एज आई टोल्ड यू। और मंगलयान जो है वो हमने किया था। मंगलयान आप पूरा पढ़ सकते हैं, PSLV C-25 से लॉन्च हुआ था। 5 नवंबर 2013 को ये लॉन्च हुआ था, और ये 25 इन्वेंशन ऑफ 2014 में बहुत फेमस हुआ था। मार्स ऑर्बिटर मिशन सब पहले ही बार में हम सक्सेस हुआ था इसमें। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम देख सकते हैं जो अभी तक मैंने पढ़ा है उसमें से। व्हाट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सैटर्न। सबसे पहला है जुपिटर, सेकंड सैटर्न, देन यूरेनस, फोर्थ सेट नेपट्यून एंड फिफ्थ इज आवर अर्थ। Which of the following is a small solar system body containing large quantity of ice? इसे हम पढ़ने वाले हैं आगे, बट इसका जो आंसर है कॉमेट्स है। कॉमेट्स जो है वो ट्रेवल करते हैं एस्ट्रॉइड जैसे, ये ट्रेवल करते हैं कुछ पीरियड ऑफ टाइम में अपने सोलर सिस्टम में, और इनका जो स्मॉल साइज के रहते हैं, ये एस्ट्रॉइड से भी स्मॉल साइज के रहते हैं, लेकिन ये आइस का क्वांटिटी ज्यादा अपने पास रखते हैं। इसलिए ये कॉमेट्स की टेल दिखती है ब्लू कलर की, क्योंकि ये आइस जो है वो फ्रिक्शन के कारण छोड़ते जाते हैं, आइस जो है पिघलती जाती है। तो कॉमेट्स हैं, ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ आइस रखते हैं। देन वी गोना स्टडी विच प्लैनेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी इन आवर सोलर सिस्टम। जो सबसे ज्यादा डेंस प्लेनेट है हमारा खुद का अर्थ ही है, तभी यहाँ पे लाइफ सपोर्ट हो रही है, तभी यहाँ पे लैंड है, तभी यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो सॉलिड है, क्योंकि यहाँ की जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। ना मर्क्यूरी, वीनस, मार्स किसी की भी नहीं है, और जोवियन प्लैनेट्स तो इसमें आती ही नहीं है, क्योंकि जोवियन प्लैनेट्स पूरे गैसियस फॉर्म है। तो सबसे ज्यादा आती है अर्थ की। लॉजिकल क्वेश्चन है थोड़ा सा। विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट इन सोलर सिस्टम? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, रेड प्लैनेट किसे कहते हैं? रेड प्लैनेट कहते हैं मार्स को, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस बहुत ज्यादा होती है। आयरन ऑक्साइड इसके लैंड पे बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, तो रस्ट जो है वो, आयरन ऑक्साइड इन द सेंस रस्ट, जो रस्ट है जंक लगा हुआ है, पूरे रेड रेड है, तो इस कारण से इसे रेड प्लैनेट कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज नोन एज मॉर्निंग स्टार एज वेल एज इवनिंग स्टार? मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार हमारे सोलर सिस्टम में किसे कहते हैं? वीनस को कहते हैं, क्योंकि हम इसे रोज सुबह वेस्ट में और शाम में ईस्ट में देख सकते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा टेम्परेचर में हाई रहता है, इसीलिए ये डिसिपेट करता है लाइट को। और ये था हमारा एंडिंग आज की क्लास के लिए। थैंक यू सो मच।